Now, today we can discuss the spectrum. A spectrum is a band, is a group or band of the wavelength or color, and the study of emission of absorption spectra is known as spectroscopy. Means, and when we talking about the emission and absorption spectra, there is interaction of the matter with the energy, and with the interaction the band or group of spectrum or band of wavelength we can obtain, we can call spectrum, and the study is called spectroscopy. There are two types of the spectrum in spectroscopy. Number one, emission spectrum. Number two, absorption spectrum. When the radiation, what is emission spectrum? When the radiations are from a source are incident on a prism and are separated into different wavelength and obtained on a photographic plate. मीन्स जब कभी भी हम रेडिएशन को सोर्स किसी इंसिडेंट सोर्स से प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो वो सब उनकी वो सेपरेट हो जाती हैं डिफरेंट वेवलेंथ में, और वहां से हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पेक्ट्रम जो obtained होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है दो तरह का है, एक कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। देयर इज नो गैप बिटवीन द वेरियस वेवलेंथ्स, कि एक वेवलेंथ का बैंड दूसरी वेवलेंथ के बैंड के साथ जब जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। समझते हैं डायग्राम से। सपोज ये वेवलेंथ जो है क्या कर रही है, स्लिट से पास होकर पर्टिकुलर वेवलेंथ प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है, और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक पैटर्न आ रहा है जो एक रेगुलर पैटर्न, यू सी हियर। अब यहां से हमें क्या क्या मिला, जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो पैटर्न आएगा तो उसके अंदर एक जैसे ही बैंड एक बैंड दूसरे के साथ आएगा, कोई गैप नहीं आएगा, चाहे इस वर्टिकल बैंड होगा चाहे हॉरिजेंटल बैंड होगा। तो कहता है कि या डायगोनल बैंड होगा, लेकिन उसको सेपरेशन नहीं होगी एक वेवलेंथ की दूसरे के साथ, उस चीज को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट। दूसरी बात, डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, इसका दूसरा नाम है लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कि जो हम एलिमेंट का स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। इसके अंदर क्या किया जाता है कि देयर इज सर्टेन वेवलेंथ go missing from a group and leave dark space in between giving discontinuity to the spectrum. It is also called as fingerprint of the एलिमेंट। की हर एक एलिमेंट का एक अपना करेक्टर होगा जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। समझते हैं डायग्राम से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सपोज करो दिस इज द सोर्स ऑफ द व्हाइट लाइट एंड वी सी हेयर इन when we this white light passes through a slit and undergo passes from the prism and put on the photographic plate, what will happen, there is specific bands, dark bands are formed, and in between them there is a space, empty space, and that is why we can call discontinuous emission spectrum. And this band, this energy gap or band of wavelength between the two different bands, that is a characteristic of the element, and we can call fingerprint of the element. Now, another one is absorption spectrum. What is absorption spectrum? When a light from any source is first passed through the solution of chemical substance and then analyzed, it is observed that there are some dark lines in otherwise continuous spectrum. Bohr studied the atomic spectra of hydrogen, and based on that he proposed his model. We see here in case of discontinuous you can see only bands, but there are number of bands are formed in the absorption spectrum, and different bands distinguish that they have different type of atoms present which are
put which are strike on the photographic plate. Now another one is Bohr model of atoms. What is Bohr model of atoms? Means when we can study the first Thomson model, another one is Rutherford model of atom. Now the shortcoming of the Rutherford model of atom was explained by the Bohr and put the atomic model to which explain the structure of an atom. According to this model, the main postulates are an atom consists of very small, heavy, positively charged nucleus at the center, and electrons revolve around it in a circular path called orbit. Orbit basically it is a circular path around which the electron can revolve. Now, electrons in revolves only in their orbits, which have fixed value of energy. इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिनकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी एंड द ऑर्बिट को दूसरा नाम दिया गया एनर्जी लेवल्स या बोला गया स्टेशनरी स्टेट्स. इनको दे आर नंबर्ड एज 1 2 3 first energy level, second energy level, third, and these numbers are known as principal quantum number. Later on we can discuss. Now energy of the electron is given by, you see here, suppose this is the relation for the energy of the electron where R is the Rydberg constant and its value is 2.13 into 10 raised to power minus 38 joule. Z is the atomic number or atomic, or EJ is equal to minus 2.18 into 10 raised to power minus 28 Z upon m square joule per atom. जब इसको और रिफाइंड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो इसके अंदर आ गई है minus 13.6 Z स्क्वायर m स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अब जब इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल के अंदर पर मोल में कन्वर्ट किया जाता तो आएगा 1312 Z स्क्वायर n स्क्वायर, लेकिन क्या होगा माइनस. इट मींस दैट द एनर्जी ऑफ वेरियस लेवल्स आर एज अंडर की सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी जो अंदर वाला लेवल होगा k, फिर l, फिर m, फिर n. एंड एनर्जी ऑफ लोवेस्ट लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. जो सबसे छोटे लेवल की एनर्जी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट. रेडियस किससे निकलेगा, रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स किससे निकलेगा, E R इज इक्वल टू दिस फॉर्मूले से. उसके बाद कहता है कि ये जो फॉर हाइड्रोजन Z एटॉमिक नंबर 1 होता है तो रेडियस फॉर द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कॉल्ड एज बोहर ऑर्बिट कितना होगा 52.9 पिकोमीटर आएगा. वेलोसिटी किससे निकालेंगे, B A is equal to electron in a different orbit is 2.18 in 10 raised to power 6 Z square divided by n meter per second. Since the electron revolve only in those orbits. ये हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला, एनर्जी निकाली और वेलोसिटी निकाली किससे, बोहर मॉडल ऑफ एटम से. कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है in those orbit which have fixed value of the energy and hence electron in an orbit can only certain definite amount of the energy. अब उस एनर्जी को बोला गया thus energy of the electron is quantized. कि दूसरे एनर्जी लेवल की अपनी एनर्जी होगी, तीसरे की अपनी एनर्जी होगी. We can call the energy of the electron is quantized. Like energy एंगुलर मोमेंटम किससे निकलती है, mvr is equal to nh upon 2 pi. इस फॉर्मूले से mvr is equal to nh upon 2 pi. उसके बाद क्या बोला कि an electron does not lose or gain energy whereas when it is present in, अगर एक ही ऑर्बिट के अंदर या एक ही शेल के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करता है. जब एक ऑर्बिट से या एक एनर्जी लेवल से या शेल से दूसरे शेल में, सपोज ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, यहाँ से अगर जंप इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा तब ये एनर्जी लूज और गेन करेगा. अगर जब तक इस एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी ना तो लूज होगी ना तो गेन होगी. नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन
गेन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन, सपोज को इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन की, तो एक्साइट होके हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि this is the higher energy level or excited state, and it loses energy in the form of electromagnetic radiation and come to the, means since the excited state is highly unstable state, और ये क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट पर आने की कोशिश करेगा, और जब नीचे आएगा तो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करता है। समझते हैं। सपोज करो ये एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू एच सी अपन लेमडा, E इज इक्वल टू एच बी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी वो गेन की तो कहाँ पहुंचा, हायर एक्साइटेड स्टेट में। अब कहता है कि एनर्जी लूज करता है, फिर दोबारा जाके कहाँ पहुंचता है, ग्राउंड स्टेट में। मीन्स दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन एंड दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन व्हेन इट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज E is equal to hc upon lambda, we can call, यहाँ पे डी एक्साइटेशन से एनर्जी लूज करेगा, एक्साइटेशन से एनर्जी गेन करेगा और हायर एनर्जी स्टेट पर जाएगा। इस सिंस दिस हैव लेस अपीयरेंस, हायर एक्साइटेड स्टेट हैव लेस अपीयरेंस, देयरफॉर it loses its energy and come again to the ground